Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture 9 of Maths 20, Linear Algebra with Differential Equations. Today we are going to discuss subspaces of a vector space, their examples, and some particular examples which show that a certain set is not a subspace when a set is not a subspace of a vector space. And then we shall also discuss spanning sets and linear independence in today's lectures. So in the previous lecture, we discussed in detail vector spaces, the 10 properties of the vector spaces. If a set, along with the addition, two binary operation, addition and scalar multiplication, if the set satisfy the 10 properties which we discussed in the previous lecture. If that set satisfy all the 10 properties, then we say that the set is a vector space. Okay, I hope you understand. If you have any question regarding the vector spaces, you can ask me. So today we are going to discuss subspaces of a vector space. Subspaces are basically, at first, they are subsets of the vector space. Formally, the definition of subspace is, say W is a subset of any vector space V. Then W is called a subspace of V if W is itself a vector space. Under the same binary operations of addition and scalar multiplication, which we define on the vector space V. So remember it, a subset W of a vector space V is called subspace of V if W, along with the same binary operations as defined for V, is itself a vector space. Okay, is itself a vector space means that the elements of W, they also satisfy all the 10 properties of a vector space. Okay? So this is the first formal definition of a subspace. Trivial subspaces include, as we know that every set is also a subset of itself. Okay, we can say that. Let me turn on this thing. So V, any set, if we have V, then V is a subset of V. So now we already know that V satisfies all the 10 properties. So here also V satisfy all the 10 properties. So this is a subset of V and it satisfies all the 10 properties. So V is a subspace of itself. The second trivial subspace is the zero subspace. Zero here is basically the identity element of the vector space. Okay, zero here is the additive identity element, which we add into some other vectors, then it doesn't change anything. So if we have only one element in this subset, 0, how is it possible that it is a subspace of V? This set also satisfies all the 10 properties. We can verify. For example, if we add up 0 2 times, okay, for the first property, Clore law, okay, so its resultant is again 0. So it must belongs to the set, this one. Okay. Similarly, commutative law, associative law, additive inverse 0 को क्या होगा? 0 है, वो इसी सेट में है. ठीक है, तो additive inverse क्या है 0 का? वो भी 0 ही है, तो पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी. तो सिमिलरली, या अगर आप 6 प्रॉपर्टी को देखें, 6 प्रॉपर्टी क्या है? k times 0 is what? Is also 0. That belongs to the set, this one. It's the 6th property, which is the Clore law under scalar multiplication. It also holds. Similarly, we can prove all the 10 properties for this single element 0. So this set, 0 set, is also
a subspace of V, because the element which is the only element 0 in this set satisfy all the 10 properties. Okay, so I hope you get it. If you have any question, you can ask me. जी बेटा, कौन है? शहरियार, आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही. कैन यू काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन? No, I'm unable to listen you. Kindly type your question in the chat window. मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी. Can you type your question in the chat window? I think there is some issue with your internet. So what will be the multiplicative inverse of 0? So देखिए 10th प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चेक करते हैं. 1.0 is 0, so it belongs to this set. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, आप 0 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका 1 आए, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो हम यहाँ पे चेक ही नहीं कर रहे. वेक्टर स्पेसेस में हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते ही नहीं है. ठीक है, देयर इज नो प्रॉपर्टी among the 10 properties of a vector space in which we verify that an element has a multiplicative inverse. वैसे यूजुअली अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स देखें तो किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है. फॉर एग्जांपल 3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/3. ठीक है, तो उसमें रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस होते हैं, लेकिन वेक्टर स्पेसेस में हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं देखते. ठीक है, आई होप यू गेट इट. शहरियार, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि जीरो को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है किसी भी सेट में? यूजुअली 1 होती है. ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करें तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 होना चाहिए. 1/0 इज अनडिफाइंड, तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता. So I hope you get it. Let's move forward. These are some trivial subspaces of any vector space. Zero सेट जो है, जीरो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है, रिमेंबर दिस. ये दोनों सेट जो हैं वो किसी भी वेक्टर स्पेस के डेफिनेटली सबस्पेसेस होंगे. Some other examples which are non-trivial are they include, for example, in the first example, the set W, which is what? It has elements of the type x0. So इसके elements इस type के हैं. ठीक है, where x belongs to R. अच्छा, in total ये जो elements होंगे ये किसको belong करेंगे? They are basically elements of R square. ठीक है, अगर ग्राफिकली देखें तो ये सेट क्या होगा? अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, तो आपके पास ये जो W सेट होगा, ये W सेट क्या होगा? दिस इज योर x एक्सिस, ओनली x एक्सिस, दिस इज योर W. ठीक है, क्योंकि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिसमें y 0 है वो सिर्फ x एक्सिस पे ही होता है. तो ये एक पूरी लाइन है जो कि R स्क्वायर का सबसेट है, ऑब्वियसली सबसेट होगा. We need to show that this W is the subspace of R square. First of all, W is a subset of R square. ठीक है, और W पे हम फिर वेरीफाई करेंगे all the 10 properties. 10 properties में आपका क्लोजर लॉ आ जाता है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, बाकी फिर कम्यूटेटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा. ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज क्योंकि हमने R स्क्वायर के एलिमेंट्स पे अप्लाई की हुई हैं. I hope you can prove all the 10 properties for the elements of this W set. ठीक है, try it yourself. अगर कोई इशू आता है तो you can ask me any question.
ड्यूरिंग माई ऑफिस आवर्स, आज मेरे ऑफिस आवर्स भी हैं, ठीक है. अदर देन दैट यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर एज वेल. Let me prove maybe one property for this, or a couple of properties. Do I have something? No. हाँ, अगर पहली प्रॉपर्टी को देखें तो इस सेट के लिए पहली प्रॉपर्टी को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? दैट इज द क्लोजर लॉ. हम कहेंगे कि U और V दो एलिमेंट्स हैं W के, ठीक है. तो हमने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव U plus V also belongs to W. This is the first property. अच्छा, इसमें जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, वो वही होंगे जो आर स्क्वायर पे डिफाइन होते हैं, ठीक है. तो यूजुअल एडिशन एंड बाइनरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है यहाँ पे. अगर U और V का हम सम लें तो U किस किस्म का एलिमेंट होगा? ये U 0 टाइप का एलिमेंट होगा, ठीक है. और V किस टाइप का एलिमेंट होगा? V 0, ठीक है. अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट U plus 0 V, ठीक है. अब U अगर R को बिलोंग करता है तो V भी एंड V भी R को बिलोंग करता है, तो इन दोनों का सम जो है वो डेफिनेटली R को बिलोंग करेगा, क्योंकि सम ऑफ टू रियल नंबर इज रियल नंबर. इसका सेकंड कंपोनेंट 0 है. तो इसी टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? वो W को बिलोंग करते हैं. इट मींस ये जो एलिमेंट है ये W को बिलोंग करता है, ठीक है. आई होप यू गेट इट. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम V और U को इंटरचेंज कर लेंगे इनकी प्लेसेस, तो कम्यूटेटिव लॉ प्रूव हो जाएगा. इसी तरह एसोसिएटिव और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी इस सेट में? एडिटिव आइडेंटिटी वही होगी जो कि R की है, 0 0, ठीक है. इस एलिमेंट को अगर किसी भी W के एलिमेंट में ऐड करें तो वो एलिमेंट इटसेल्फ ही रहेगा. फिर एडिटिव इनवर्सेस क्या होंगे? अगर U हमारे पास x 0 है तो नेगेटिव ऑफ U एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका? -x और 0, ठीक है. ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है. सिमिलरली वी कैन प्रूव all the 10 properties of the vector space for this set, ठीक है. अब ये ग्राफिकली भी हमने देखा कि ये सबसेट है R स्क्वायर का और ये 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. तो इट मींस दिस W इज itself a vector space. ये खुद से वेक्टर स्पेस है, तो इसलिए ये सब स्पेस होगी R स्क्वायर, ठीक है. सेकेंड एग्जांपल में अगर आप देखें तो एक सेट गिवन है W जिसमें इस टाइप के ऑर्डर ट्रिपलेट्स हैं वेयर Y बिलोंग्स टू R, और ये एलिमेंट्स किसको बिलोंग करते हैं? यूजुअली ऑर्डर ट्रिपल्स ये R क्यूब को बिलोंग करते हैं, ठीक है. अगर ये R क्यूब को बिलोंग करते हैं तो ग्राफिकली अगर हम देखें R क्यूब ये है, ठीक है, where this is x axis, ठीक है, this is y axis and this is z axis. तो ये W सेट क्या होगा? W सेट इज बेसिकली, देखें सेकंड कंपोनेंट है, ऑल द ऑर्डर पेयर्स का नॉन जीरो है, तो ये बेसिकली W आपका जो है ये y एक्सिस होगा सिर्फ, ठीक है. ये वाली लाइन होगी जो कि W, ठीक है. अब W क्या है? सबसेट है R क्यूब का. R क्यूब वेक्टर स्पेस है. W अगर हमने प्रूफ करना है कि ये सब स्पेस है तो हमने ये प्रूफ करना है कि W is also a vector space itself, ठीक है. तो again we need to prove all the 10 properties of a vector space here in order to show or in order to investigate whether W is a subspace or not. But this is very lengthy process कि पहले आपने सेट्स को वेक्टर स्पेस प्रूव किया, फिर उनके सबसेट को अगर सब स्पेस प्रूव करना है तो फिर दोबारा 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें. तो इज देयर एनी वे कि ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाए, या इट कुड बी डिफाइन मोर ब्रीफली? यस, देयर इज सम मेथड, ठीक है. इसमें एक थ्योरम है विच हेल्प अस वेरी मच. तो वो देखते हैं थ्योरम क्या है, ठीक है. थ्योरम ये है कि if W is a set of one or more vectors in a vector space V, means W is a subset of
नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, ठीक है। कम से कम एक या एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे W में, एम्प्टी सेट नहीं होगा, ठीक है। एम्प्टी सेट को हम वेक्टर स्पेस प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एलिमेंट्स नहीं है। तो then W is a subspace of V if and only if W is a subspace of V if and only if the following conditions are satisfied, these two, ठीक है। ये दो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है if U V belongs to W then U plus V belongs to W। ये कंडीशन हमने पहले देखी हुई है। पहली प्रॉपर्टी है 10 प्रॉपर्टीज में वेक्टर स्पेस की, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोयर लॉ है ये, क्लोज्ड अंडर एडिशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इफ U belongs to W and K belongs to R, K is a scalar, then K times U belongs to W। ये भी वेक्टर स्पेस की एक प्रॉपर्टी है जो कि 6th प्रॉपर्टी है। इसको क्लोयर लॉ अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, या क्लोज्ड अंडर, फिर सेट को हम क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस थ्योरम में, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम, इस थ्योरम में ये कह रहा है कि अगर W सबसेट है V का, W सबस्पेस होगी V की, इफ एंड ओनली इफ W के एलिमेंट्स सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओनली 2 प्रॉपर्टीज, बाकी 8 प्रॉपर्टीज को आप छोड़ दें। अच्छा, इस थ्योरम में ये स्टेटमेंट है, इसको कैसे प्रूफ करते हैं वो तो एक बात की बात है, लेकिन अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं सबसेट में, तो वो उसका मतलब ये होगा कि 10 की 10 प्रॉपर्टीज डेफिनेटली सेटिस्फाई होंगी। कैसे? हम डिड्यूस कर लेते हैं यहां से, देखें W इज अ सबसेट ऑफ V और V वेक्टर स्पेस है। अच्छा, हमने पहले ही प्रूफ किया हुआ है कि वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स जो हैं वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं, तो वही एलिमेंट W में भी हैं, तो W में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेंगे। अगर कोई से 3 एलिमेंट V में हैं, मतलब कोई भी 3 एलिमेंट ले लें, इट मींस सारे एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस V में जो हैं वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। अब वही एलिमेंट, उसमें से कुछ जो हैं वो W में है, तो W में भी वही एलिमेंट हैं, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो चौथी प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी W में लाजमी होगी, क्यों? क्योंकि बाय यूजिंग द सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम देखें सेकंड प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि देखें, अगर के यू W को बिलोंग करता है, ठीक है, अगर हम K को 0 ले लें, फॉर एग्जांपल K तो R को बिलोंग करता है ना, वेयर K बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब R में K कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, फॉर ऑल K बिलोंग्स टू R। अगर हम K को 0 चूज करें तो ये 0 U क्या आ जाएगा? 0 को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी सारी एंट्री 0 हो जाएंगी, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 वेक्टर, ठीक है। अब 0 वेक्टर क्या होगा? ये बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी होगी जो कि W को बिलोंग करेगी, ठीक है। सो W में अगर सारे के सारे एलिमेंट्स ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो डेफिनेटली एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो W में लाजमी होगी, ठीक है। ये चौथी प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। पांचवी को देखते हैं। पांचवी क्या है? एडिटिव इनवर्सेस, ठीक है। एडिटिव इनवर्स किसी भी वेक्टर का W में अगर U है, ठीक है, U एक वेक्टर है या एलिमेंट है W का, ठीक है। अगेन बाय सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आप देखें K U W को बिलोंग करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम K को चूज कर लेते हैं -1, ठीक है। अगर K को चूज कर लेते हैं -1, तो इट मींस -1 टाइम्स U मींस -U, ये भी किसको बिलोंग करेगा? W को बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि U का एडिटिव इनवर्स W के अंदर मौजूद है, ठीक है। इससे ये पांचवी प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई, ठीक है। सिमिलरली छठी प्रॉपर्टी, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है जो इसमें इंक्लूडेड है, कि हमने कहा है कि
ये सेकंड प्रॉपर्टी जो है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। 6 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब 7th प्रॉपर्टी क्या है? 7th प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास k कोई स्केलर है और u और v वेक्टर्स हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। k टाइम्स u प्लस v इज इक्वल टू व्हाट? k टाइम्स u प्लस k टाइम्स v। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखें तो ये पहली और दूसरी प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर यहां से पहली प्रॉपर्टी से देखें, अगर यही दो एलिमेंट्स v और u, ठीक है, k के साथ इस प्रॉपर्टी को v के लिए सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि v इज अ वेक्टर स्पेस, u v अगर w को बिलोंग करते हैं तो v को भी बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यही एलिमेंट्स v में भी हैं, वहां पे ये सेटिस्फाई करते हैं, तो w में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने का। दिस इज बेसिकली लॉजिक बिहाइंड हियर, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। सिमिलरली ऑल द अदर प्रॉपर्टीज जो 7th 8th 9th एंड 10th जो हैं, वो बेसिकली अगर v में ये एलिमेंट्स वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, तो w में भी v के ही एलिमेंट हैं, तो w में भी डेफिनेटली सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, आई होप यू गेट इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। If you have any question, you can ask. So this theorem is very important theorem, which tells us that instead of proving all the 10 properties for the subsets in order to show that they are whether they are vector spaces or subspaces or not, we need only to prove these two properties. अगर ये दो property hold कर जाती हैं, तो इसका मतलब है कि सबसेट के एलिमेंट्स जो हैं वो सारी की सारी 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, सो अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमें कोई भी अगर सबसेट है उसको सबस्पेस प्रूफ करना है, तो 10 प्रॉपर्टीज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये वाली दो प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे। ठीक है, नाउ अगेन अगर हम दोबारा वही सेट्स ले लें, तो अब इनको अगर हमने सबस्पेस प्रूफ करना है तो हमने दो प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है, एक क्लोजर अंडर एडिशन और क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आई होप यू कैन डू इट। मैंने आपको पहले भी ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो करके दिखाई हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज प्रूफ की हैं। आई होप यू कैन डू इट योरसेल्फ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। हाँ मैं पीछे लेके जा रहा हूँ। ये मैंने उसका एक वेरी ब्रीफ काइंड ऑफ प्रूफ गिवन है। ठीक है, ये आप देख लें, ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, स्टिल इफ यू डोंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ठीक है, नाउ एन एग्जांपल फ्रॉम द मैट्रिसेस। Let we have a set M22. M22 is the set of matrices of order 2 cross 2. ठीक है, M22 एक बहुत बड़ा सेट है जिसमें मैट्रिसेस हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के। ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकते हैं, इसकी एंट्रीज जो हैं ये A B C D, where A B C D belongs to R of 2 cross 2 matrix is a vector space। हमने ये प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ये वेक्टर स्पेस है। All the 10 properties were satisfied जब हमने इस एग्जांपल को डिस्कस किया था। ठीक है, अंडर द यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं या स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐड करते हैं, तो यूजुअल बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन इन सेट। अब नीचे एक और सेट गिवन है W। W इज व्हाट? W इज अ सबसेट ऑफ M22। W में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं? वो मैट्रिसेस हैं जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स matrices, I hope you know what are the symmetric matrices. Symmetric matrices वो matrices होते हैं जिनका अगर ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स आ जाए।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए विच इज 1 2 मे बी 2 एंड 3, ठीक है। अब अगर इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज मींस फर्स्ट रो को, ये जो रो है इसको कॉलम में लिख दें, ठीक है, और दूसरी रो को भी कॉलम में लिख दें, ठीक है, तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ गया। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए के इक्वल है। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। अब इस सेट में, डब्ल्यू सेट में सारे के सारे सिमेट्रिक सेट्स हैं। अब हमने प्रूफ करना है कि ये जो डब्ल्यू सेट है ये सब स्पेस है M2, ठीक है। हमने सिर्फ दो प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। अगर हम देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या करना है, हम कहेंगे फॉर ऑल मैट्रिसेस A B बिलोंग्स टू W, ठीक है। हमने दो मैट्रिसेस ले लिए, फिर हमने प्रूफ क्या करना है, to prove, yeah, this should imply A plus B belongs to W, ठीक है, हमने ये प्रूफ करना है। अच्छा, कोई भी मैट्रिक्स इस W को कब बिलोंग करेगा, जब वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो A plus B अगर हमने प्रूफ करना है W को बिलोंग करता है, तो we need to prove that A plus B is symmetric matrix, ठीक है। In fact, we have to prove that A plus B is symmetric. तो इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए बेसिकली हमने क्या प्रूफ करना है, A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस बी। तो लेकिन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट, इट इज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है। अब क्योंकि A भी सिमेट्रिक है, A सिमेट्रिक है, तो A का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, A के इक्वल। B भी सिमेट्रिक है, तो B का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, B के इक्वल। अब इसका मतलब क्या है कि A प्लस बी होल ट्रांसपोज ये किसके इक्वल आ गया, इट इज A प्लस बी, ठीक है। अच्छा, ये अगर इसके इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या है, A प्लस बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A प्लस बी बिलोंग करेगा किसको, W, ठीक है। अब अगर A प्लस बी W को बिलोंग करेगा तो आपकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ट्राई करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल A belongs to W and K belongs to R, K is a scalar। हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव K into A belongs to W, ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। अच्छा, K एक W को कब बिलोंग करेगा, जब K A का ट्रांसपोज जो है वो K टाइम्स A के इक्वल होगा, ठीक है, तभी K A सिमेट्रिक होगा ना, ठीक है। तो हमने प्रूव एक्चुअली ये करना है, ठीक है। अगर हम कंसीडर करें K A होल ट्रांसपोज, तो कांस्टेंट टर्म पे जो ट्रांसपोज है ये हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पे, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं करता। ये बेसिकली K का ट्रांसपोज K ही रहेगा, एक्चुअली ट्रांसपोज मैट्रिक्स पे आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज किसी भी कांस्टेंट पे ट्रांसपोज क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ट्रांसपोज क्या होता है, किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर कांस्टेंट है सिंगल तो इसका ट्रांसपोज वही कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे K A होल ट्रांसपोज इक्वल टू K A ट्रांसपोज। अब हमें पता है कि A W को बिलोंग करता है, अगर A W को बिलोंग करता है तो A सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा तो इसका ट्रांसपोज जो है वो A के इक्वल होगा। यहाँ पे K A आ गया, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या प्रूफ कर दिया है, ये प्रूफ कर दिया है कि K A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर K A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इट मींस K A जो है वो बिलोंग करेगा W को, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई। बाकी 8 प्रॉपर्टीज, अगर ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तो बाकी 8 की
आठ प्रॉपर्टीज जो है वो ऑब्वियसली सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि W में एलिमेंट्स तो M22 के हैं और M22 वेक्टर स्पेस है, ठीक है। आई होप यू गेट इट. If you still have any question, you can ask me. If you don't have any question, let's move forward. Yeah. Another example from the 2 cross 2 matrices. अब 2 cross 2 ले लें, 3 cross 3 ले लें, n cross n ले लें, इसमें अगर तो it doesn't change anything. उसका proof जो है वो ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में भी अगर आप M22 नहीं लेते, M33 ले लें, M44 ले लें, या M इन जनरल MNN ले लें, इन जनरल अगर हम MNN ले लें, ठीक है, which is a set of all matrices of order n cross n, ठीक है, और W यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा, अगर ऑर्डर इसका n है या 2 है या 4 है एनीथिंग, तो इसके प्रूफ में कोई चेंज नहीं आएगी, जो मैट्रिसेस का ऑर्डर आप जो मर्जी ले लें, बट द मैट्रिसेस शुड बी स्केयर मैट्रिसेस, क्योंकि ट्रांसपोज हमेशा स्केयर मैट्रिक्स, हाँ, जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं वो डेफिनेटली दे शुड बी स्केयर मैट्रिसेस, ठीक है। अगर स्केयर मैट्रिसेस नहीं है तो वो कभी भी उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप अगर A22 की बजाय A33 ले लें या ANN ले लें, इट डजंट चेंज एनीथिंग। तो M22 या MNN हमारे पास एक मैट्रिसेस का सेट है जिसमें n क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। W एक सेट है, सबसेट है M22 का, और इसमें M22 के ही एलिमेंट्स हैं, A फॉर एग्जांपल से A, सच दैट इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा कि W एक ऐसा सेट है, सबसेट है M22 का, जिसमें सारे के सारे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। डिटर्मिनेंट अगर 0 है नहीं है तो इन्वर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो W is a subset of M22 which contains all the invertible 2 cross 2 matrices, या जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। हमने इसको प्रूव करना है कि ये सबस्पेस है। वेक्टर स्पेस कौन सी है इसमें? M22। W को हमने प्रूव करना है कि ये सबस्पेस है। वही दो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, कोई से दो सेट्स लेंगे, फॉर ऑल को मैथ सिंबल्स में इस तरह लिखते हैं, ठीक है, फॉर ऑल, दिस मींस फॉर ऑल, सो रिमेंबर इट, नेक्स्ट टाइम आई शैल यूज दिस सिंबल फॉर ऑल। तो फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू W, ठीक है। टू प्रूव, हमने प्रूफ क्या करना है इसमें, A प्लस B बिलोंग्स टू W, ठीक है। अब A प्लस B W कब को बिलोंग करेगा या नहीं, कब बिलोंग करेगा, जब A प्लस B का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, ठीक है। अब हमने ये प्रूफ करना, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस B ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ B किसके इक्वल होता है, determinant of, by using the properties of determinant, it is equal to determinant of A plus determinant of B, यही होता है। समझ, ये होता है या नहीं, ये नहीं होता, सो इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी हुई है डिटर्मिनेंट की, वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये ट्रू प्रॉपर्टी है, दिस इज रॉन्ग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं,
So kindly remember this, a determinant of A plus B is not equal to determinant of A plus determinant of B. तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस B को हम प्रूव करें कि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मजीद सोचें इस पे, तो अगर हम कोई ऐसी एग्जांपल फाइंड कर लें जिसमें कोई दो मैट्रिसेस फाइंड करें जिसमें जिन इंडिविजुअली जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, लेकिन जब उनका सम लें तो उनका डिटरमिनेंट जीरो आ जाए। इज इट पॉसिबल? एनीवन? Is it possible that we have two matrices whose individual determinants are non-zero, but the determinant of their sum is 0? Yes, arrays, it could be one option. Zero matrix doesn't have a determinant, yes, but zero matrix जो है वो W में नहीं होगा या नहीं होगा? W में कौन से हैं? सारे के सारे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कोई ऐसे दो डिटर्मिनेंट लें, फॉर एग्जांपल A को हम लेते हैं मे बी 1 एंड 3, यहाँ पे आप कुछ भी ले लें, यहाँ पे 1 ले लें, यहाँ पे 0 ले लें मे बी, ठीक। अब इसका डिटर्मिनेंट जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है? ये 3 है, विच इज नॉट 0, ठीक है। हम B मैट्रिक्स लेते हैं जो कि -1 1 0 -3 है, ठीक है, और या कोई और ले लें, ठीक है। यहाँ पे ये ले लें, जैसे कि आरेज ने बताया, आरेज इज राइट। A अगर हमने 1 1 0 3 लिया और B जो है वो नेगेटिव ऑफ A ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है वो B का क्या है? वो भी 3 है, ठीक है, जो कि 0 नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों का सम करें, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा? इन दोनों का सम A प्लस B हमारे पास क्या होगा? We will have 0 0 0 and 0, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट इसका A प्लस B का 0 आ जाएगा, ठीक है। It means it is not always necessary for the elements of W that अगर हम दो एलिमेंट्स लें W में से, उनके डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनके सम का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो हो, उनके सम का डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव नहीं हो रही। कैसे? अगर A हम यही एलिमेंट यही मैट्रिक्स ले लें और K टाइम्स A हमने प्रूव करना है कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो है, K टाइम्स A, K को अगर आप जीरो ले लें तो K टाइम्स A क्या आ जाएगा? जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो आ जाएगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर सेट, this is not a subspace of P. W is not a subspace of the given vector space V, means M22 of M22, ठीक है जी। So you have to think about when a set is subspace, you need to prove two properties, और आपने ये भी देखना है कि आपने कोई रॉन्ग लॉजिक तो नहीं यूज किया। जैसे कि इस एग्जांपल में था डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस B इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ B। अगर आप इस तरह का लॉजिक यूज करेंगे जो कि एक रॉन्ग आइडेंटिटी है, तो डेफिनेटली योर सॉल्यूशन वुड बी रॉन्ग, ठीक है। एनी क्वेश्चन? If there is no question, let's move forward. Another example from the matrices. Again, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 matrices का सेट है, आप 2 क्रॉस 2 की जगह
5 क्रॉस 5, 3 क्रॉस 3, n क्रॉस n ले सकते हैं, the proof would remain same. Determine whether the set of 2 cross 2 matrices of the form A0 0 B, ये diagonal matrices हैं, ठीक है, diagonal entries नॉन जीरो हैं, off diagonal entries जीरो हैं, ठीक है, with the standard addition and scalar multiplication is a subspace of a vector space N2 2. I hope you can easily prove that the set which contains all the elements of this form is a subspace of N22. So there could be infinite many subspaces of N22. Okay? इसी तरह there could be infinite many subspaces of R square या set of real numbers R, या आप कह सकते हैं infinite many subspaces of Rn. तो अगर कोई एक वेक्टर स्पेस है तो उसकी हम infinite many subspaces डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे I hope you can yourself prove this set is as a subspace. It will be a subspace. Okay, and let's move forward. This one. पहले हम स्केयर मैट्रिक्स ले रहे थे, अब इस एग्जांपल में मैंने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लिया है, ठीक है. W आपके पास 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है. 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मींस किसी भी कोई भी नॉन स्केयर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं. द प्रूफ डजंट चेंज एनीथिंग. आप 2 क्रॉस 3 ले लें, 2 क्रॉस 5 ले लें, 4 क्रॉस 8 ले लें, एनीथिंग, बस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए. और इसकी जो एंट्रीज हैं वो पहली एंट्री ए है, फिर बी है, 0 है, फोर्थ एंट्री ए प्लस बी है. ए प्लस बी एक रियल नंबर होगा क्योंकि ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं. तो ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है. अब हमने ये प्रूव करना है कि ये सबस्पेस है या नहीं, ठीक है. तो ये डेफिनेटली सबस्पेस होगा अंडर द सेम एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन वी. जो यूजुअल एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होते हैं मैट्रिसेस में, वही हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है. तो इसको सबस्पेस प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स लिए हमने x और y. इट्स वेरी इजी, x और y, ठीक है. x में हमने a b ले लिए और इसमें हमने x y ले लिए, ठीक है. अगर दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस x, अगर a रियल नंबर है, x भी रियल नंबर है, तो इनका सम भी रियल नंबर होगा. ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है. तो इस टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, वो W को बिलोंग करते हैं. W को बिलोंग करेगा, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. सिमिलरली वी कैन प्रूव द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. वो मैंने आगे शायद प्रूव की होगी. यहाँ पे किसी भी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि W में है, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो ये आएगा. और इस तरह के मैट्रिक्स जो हैं वो W को बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिसमें ये वाली एंट्री 0 और ये वाली एंट्री 0, ठीक है. इसी तरह के मैट्रिक्स है ना W में, तो ये W को बिलोंग करेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी. So if you guys have any question, go ahead, you can ask me. चलिए अब कोई थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल दिस वन जो कि सबस्पेस नहीं है. Let W be the set of all vectors in R square, with the set of all vectors in R square whose components are rational numbers. देखिए R square का जो सेट है उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ठीक है. और वो ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं, मसलन सॉरी R square क्या सेट है? R square is a set which contains ordered pairs x y, ठीक है, such that x belongs to R और y belongs to R. ऐसे ही होता है ना R, ठीक है. इसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं. लेकिन यहाँ पे W एक सेट है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो p q, ये रैशनल नंबर्स, ठीक है. मींस x belongs to sorry this one. P और Q जो है ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? दे बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है. अब हमने ये प्रूव करना है कि W सबस्पेस है या नहीं, ठीक है. पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि दो अगर वेक्टर्स लेते हैं W में तो दो
रैशनल नंबर्स का सम जो है वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि दो रैशनल नंबर्स का सम हमेशा रैशनल ही होता है। तो जो u प्लस v है, दो वेक्टर्स अगर w में से लेंगे तो उनका सम जो है वो w को बिलोंग कर जाएगा, पहली प्रॉपर्टी। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली है। अब w में से कोई एक कंपोनेंट लें, सॉरी w में से कोई एक वेक्टर लें pq से, और k कोई स्केलर लें। अब k स्केलर अगर हम कोई इररेशनल नंबर ले लें, क्योंकि रियल नंबर में तो रैशनल भी हैं इररेशनल भी हैं, अगर k को हम कोई इररेशनल नंबर ले लें और मल्टीप्लाई कर दें इसके एलिमेंट के साथ, ठीक है। मसलन यहाँ पे क्या एग्जांपल दी हुई है, पाई इंटू एक्स। अगर पाई को हम पी क्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो पाई एक इररेशनल नंबर है और इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये रैशनल है। एंड वी नो दैट फ्रॉम द कैलकुलस that the product of a rational number and an irrational number is always an irrational number, ठीक है। तो आप देख भी लें बेशक, अगर आप 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें और अंडर रूट 2 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इररेशनल नंबर है, 3 जो है वो रैशनल नंबर है, तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमेशा क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास इसका प्रोडक्ट इररेशनल नंबर आ गया, तो ये W को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी सब स्पेस की सेटिस्फाई नहीं होती। अगर ये नहीं होती तो डेफिनेटली ये सब स्पेस नहीं होगा। लेकिन जब ये कोई एग्जांपल देते हैं ना हम यहाँ पे किसी भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को, पहली को या दूसरी को डिसप्रूव करने के लिए, तो इस एग्जांपल को हम काउंटर एग्जांपल कहते हैं। मैथमेटिक्स में किसी भी चीज को प्रूफ करना बहुत आसान, सॉरी मुश्किल है, किसी चीज को डिसप्रूव करना बहुत आसान है, ठीक है। अगर हमने ये दो प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है तो वी नीड टू यूज सम लॉजिकल स्टेप्स या कोई लॉजिकल फार्मूलाज, कोई ऐसी चीज हमें जो कि हम प्रूफ कर सकें उस स्टेटमेंट को। लेकिन अगर डिसप्रूव करना है तो कोई एक एग्जांपल दे दें कि ये होल्ड नहीं करती उसमें, वो उस एग्जांपल को हम काउंटर एग्जांपल कहते हैं। So it is sufficient to give at least one example to disprove a statement. तो यहाँ पे ये वाली जो example है, this is sufficient to disprove that the second property doesn't hold. So I hope you got it कि ये subspace नहीं होगी. If you have any question, you can ask me. Next is here are sets which are subsets of R4. W1 है, उसमें मैंने पहला एलिमेंट 0 कर दिया है, W2 में दूसरा एलिमेंट 0 कर दिया है, W3 में तीसरा एलिमेंट, W4 में चौथा एलिमेंट। बाकी जो एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3 जो है ये, सॉरी ये वाले जो है रियल नंबर्स हैं, तो ये डेफिनेटली W जो है ये सबस्पेस होगा, सॉरी सबसेट होगा इसका R4 का, ठीक है। ये सारे भी इसी तरह सबसेट्स होंगे R4 के। अब हमने प्रूव करना है कि ये सब स्पेसेस हैं। इनको सब स्पेसेस प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो प्रूव करेंगे। तो आई होप यू कैन डू इट योरसेल्फ। आई लेफ्ट दिस एग्जांपल एज एन एक्सरसाइज फॉर यू पीपल। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। इफ यू विल हैव एनी क्वेश्चन, नो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे this is very important thing which many students they think that this holds, but in fact it doesn't. For example, R is a subspace of subset of R square. Is this true? Anyone? R is a subset of R square. Is this true? No. क्यों? क्योंकि R में रियल नंबर्स हैं, x, y, z, एनीथिंग, या 2, 3, -10, ठीक है। लेकिन R स्क्वायर में आपके पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। x, सॉरी a, b,
ठीक है, इस तरह के ऑर्डर पेयर्स। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि ये 1 है, 5 है, ठीक है, और -2, -7 इस तरह के एलिमेंट्स। तो ये सिंगल एलिमेंट्स हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो ये एलिमेंट्स आर स्क्वायर को बिलोंग कर सकते हैं, ये वाले, ये तो सिंगल एलिमेंट्स हैं, ये तो बिलोंग ही नहीं कर सकते आर स्क्वायर को। आर स्क्वायर को कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो R is not a subset of R square. Similarly, R square is not a subset of R cube. Whereas अगर आपने R square के सबसेट्स को डिफाइन करना है तो ये सेट जो होगा x0, ठीक है, ये इस तरह के अगर एलिमेंट्स हैं x belongs to R, ठीक है, अगर ये सेट आप डिफाइन कर रहे हैं तो ये सेट जो है ये सबसेट होगा R square का, ठीक है। लेकिन जो सिंगल आर है वो सबसेट नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप ये देखें कि इस तरह का जो सेट है x0 0, ठीक है, या xy0, सॉरी, ये वाला दिस वन xy0, ठीक है, where xy belongs to R, ये जो सेट है ये सबसेट होगा आर क्यूब का, ठीक है। लेकिन आर स्क्वायर जो है वो सबसेट नहीं है आर क्यूब का, ठीक है। तो डोंट डू दिस मिस्टेक। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, इट्स वेरी ऑब्वियस। तो एलिमेंट टाइप्स जो है वो सेम होनी चाहिए तब वो सबसेट हो। कोई भी सबसेट है अगर किसी दूसरे सेट का, तो दोनों में जो एलिमेंट टाइप है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आर स्क्वायर में ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, आर क्यूब में ऑर्डर ट्रिपल्स हैं, तो ये इसके एलिमेंट्स की नेचर डिफरेंट है, इसके एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, इसके एलिमेंट्स में 2 कंपोनेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स में 3 कंपोनेंट्स हैं, आइडेंटिकल काइंड ऑफ एलिमेंट्स नहीं है इनमें, इसलिए आर स्क्वायर जो है वो सबसेट नहीं है आर क्यूब का। Whereas this kind of set which contains this kind of elements could be the subset of R cube. I hope you get this point. If you have any confusion, you can ask me. Another example, ये एक एग्जाम्पल है, चलें इसको डिस्कस करने से पहले हम ये वाली कर लें. Let's have a break of maybe 10 minutes. Then we'll regroup here and we shall start from here. So let's have break. अभी 11:09 हुए हैं, 11:20 पे मिलते हैं दोबारा, ठीक है? Okay, see you then. In this example, we have a set V, which is R1 square. Defined by R1 square is what? It contains the ordered pairs from R square xy such that y is equal to 3x. Such that y is equal to 3x. Means this is a set which contain elements of R square such that x is x and y is equal to 3x. What kind of set is this in R square? If we look at graphically, look at the graph of this set, what would be the graph? So this will be the set of all this point will make a straight line having slope 3 passing through origin. This will be the graph of y is equal to 3x. Okay, ये इसका ग्राफ होगा. ग्राफिकली बेसिकली ये सेट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन में से पास कर रही है, ठीक है. अच्छा, अब हमने ये प्रूफ करना है whether the set of all points on this straight line forms a subspace of R square or not. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कोई से 2 एलिमेंट्स, वही बेसिकली सबस्पेस प्रूफ करना है. 2 प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे हम. पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है आपके पास, अगर आप कोई से 2 एलिमेंट्स लेते हैं, मसलन x और y 2 एलिमेंट्स लेते हैं R1 स्क्वायर में से,
तो हमने ये प्रूव करना है कि इन दोनों का सम जो है वो x प्लस वाई का सम भी R1² को बिलोंग करता है। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, x प्लस वाई, ठीक है, अगर x R1² को बिलोंग करता है तो हमने अस्यूम किया कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो x1 x2 हैं, ठीक है, और जो दूसरे y है उसका कंपोनेंट है y1 y2, ठीक है। अच्छा, अब x2 जो है वो किसके इक्वल होगा, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द सेट, x2 जो है वो होगा 3x1 के इक्वल, क्योंकि ये बाय डेफिनेशन है एलिमेंट ऑफ द सेट। इसी तरह यहाँ पे y2 जो है वो क्या होगा, 3y1 होगा, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो व्हाट डू वी गेट, x1 प्लस y1 और 3 टाइम्स x2 प्लस y2, ठीक है। तो ये किस टाइप का एलिमेंट है, हमारे पास एक ऊपर रियल नंबर है क्योंकि x1 और y1 रियल नंबर्स हैं, नीचे अगर इसको हम मेरी z1 कह दें तो ये क्या बन जाएगा, z1 और नीचे 3z1, ठीक है। तो इस तरह के एलिमेंट्स किसको बिलोंग करते हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट z1 है और दूसरा 3z1 है, तो z1 एक रियल नंबर होगा तो डेफिनेटली ये R1² को बिलोंग करेगा। अगर ये R1² को बिलोंग करेगा तो क्या होगा, दिस एलिमेंट मस्ट बिलोंग्स टू R1²। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो अब हमने दूसरी प्रॉपर्टी को देखना है कि वो सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो दूसरी प्रॉपर्टी के लिए हमें एक स्केलर चाहिए जो कि रियल नंबर में से होगा, और एक x चाहिए, वेक्टर चाहिए जो कि गिवन सेट में से होगा R1², ठीक है। हमने प्रूफ क्या करना है, k टाइम्स x बिलोंग्स टू R1², ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हमने कंसीडर किया k टाइम्स x इज इक्वल टू, अब k यूजुअल आपकी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, ये क्या होगा, x1 x2, x एलिमेंट क्या होगा x1 और दूसरा 3x1, x2 जो है वो हमारे पास 3x1 होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द गिवन सेट, इस डेफिनेशन के। तो अब k को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, व्हाट डू यू गेट हियर, यू कैन हैव kx1 और आप इसको लिख सकते हैं 3kx1, ठीक है। तो इसमें पहला एलिमेंट kx1 है और दूसरा एलिमेंट 3 टाइम्स kx1 है, ठीक है, which is basically the definition of this set. So what does it mean? It means k belongs to, kx belongs to R1²। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल में कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है ग्राफिकली, अगर हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है y is equal to 3x और ये ओरिजिन से पास कर रही है, अब यहाँ पे 3 लिखें या 5 लिखें या कोई भी नंबर यहाँ पे लिख दें, y is equal to mx in general, where m is the slope of the straight line, and this kind of straight line it basically passes through origin, अगर ये ओरिजिन से पास कर रही है तो हमने अभी भी प्रूफ किया है कि कोई भी इस तरह की जो स्ट्रेट लाइन होगी वो उसका जो सेट होगा, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, ये क्या होगा, ये एक सब स्पेस होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप R2 में कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले लें जो कि ओरिजिन से पास कर रही है तो वो क्या होगी, वो एक सब स्पेस होगी R2 की, ठीक है, R2 की सब स्पेस। नाउ वेदर इज इट ट्रू कि कोई एक स्ट्रेट लाइन ले लें जो कि ओरिजिन से पास नहीं कर रही, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन जो है ये इन जनरल इस स्ट्रेट लाइन को हम कैसे लिखते हैं,
ax plus by इक्वल टू सम c कांस्टेंट। और जो ओरिजिन से पास करती हैं स्ट्रेट लाइन उनको हम कैसे डिनोट करते हैं, जो L2 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, L2 को हम अगर ये ओरिजिन से पास कर रही है तो यही लाइन ax plus by equal to 0 होगी। ये जनरली मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज दिस एंड नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन इज दिस, क्योंकि इसमें ये कांस्टेंट होता है। इसमें अगर x और y को 0 पुट करें तो कांस्टेंट, अगर कोई डिफरेंट हो तो इट मींस कि वो ओरिजिन में से पास नहीं कर रही। अच्छा, अगर ये लाइन हम देखें ये वाली L1 तो ये ओरिजिन में से पास नहीं कर रही। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे जो ये वाली एक्सप्रेशन है y, ये किस टाइप का एक्सप्रेशन होगा इस लाइन में, ये होगा mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का एक्सप्रेशन होगा इस लाइन के लिए, ब्लू वाली लाइन के लिए, दिस वन, ठीक है। अब आप अगर ये देखें दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं प्रूफ करें अगर इस स्ट्रेट लाइन के लिए, मींस आपने ऑर्डर पेयर जो लेने हैं ब्लू में वो क्या लेना है x1 और दूसरा जो होगा वो क्या होगा m x1 प्लस c, ठीक है। तो इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स होंगे आपके जिसमें स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही। देन यू वुड सी कि इस टाइप के एलिमेंट्स के लिए दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं सब स्पेस की होल्ड नहीं करती। अगर होल्ड नहीं करती तो इस टाइप का जो सेट होगा वो सब स्पेस नहीं बनाएगा या सब स्पेस नहीं होगा आर स्क्वायर का। आई होप यू गेट इट। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। इसमें अगर हम आर में भी कोई और ले लें, आर एल स्क्वायर ले लें, तो इसमें किस किस्म के ऑर्डर पेयर्स होंगे x और mx प्लस c, ठीक है, मोस्ट जनरली, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू r, ठीक है, और m c जो हैं ये स्केलर्स हैं, कोई भी m और c जो हैं ये भी कांस्टेंट्स हैं, दे आल्सो बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो ये इस सेट को आप ट्राई कीजिएगा प्रूफ करने की कि ये सब स्पेस बनाता है या नहीं, ठीक है। अगर आई होप ये सब स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी, ये आप ट्राई कीजिएगा, कौन सी वायलेट होती है देन यू कैन टेल, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। On the next slide, this is what we have already discussed here. Let L be the set of all points on the line through origin in R square. Then L is a subspace of R square. Recall equation of the line through origin is this. In particular, the set of all points is a subspace of R square. ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही तो बेसिकली सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होंगी, पर्टिकुलरली आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा उस सबसेट में, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं कर रही, तो फिर वो सब स्पेस नहीं होगा। शामिर मलिक, आपका माइक ऑन है, कैन यू काइंडली म्यूट इट? अगर आपका क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। चैट विंडो में लेट मी सी द चैट विंडो। सो व्हाट इफ द k is 0? k 0 होगा तो देख लें आप क्या होगा। यहाँ पे k 0 है तो दोनों एलिमेंट्स जो हैं 0 हो जाएंगे, और अगर r1 स्क्वायर है तो 0 0 उसको डेफिनेटली बिलोंग करेगा, क्योंकि r1 स्क्वायर में यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर k 0 हो जाता है तो यहाँ पे आप सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो ना, kx आप अगर कह रहे हो तो kx बेसिकली क्या होगा, kx1 और k टाइम्स 3x1 होगा, ठीक है। अगर k 0 0 है, पर्टिकुलर केस आप ले रहे हो ना, तो k 0 0 भी तो r1 स्क्वायर को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि r1 स्क्वायर में वो तमाम एलिमेंट्स हैं r स्क्वायर के जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसमें x जो है वो रियल नंबर है,
x अगर यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं तो इट डजंट चेंज एनीथिंग, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, तो ये r1 स्क्वायर को डेफिनेटली बिलोंग करेगा, क्योंकि r0 0 0 जो है वो r1 स्क्वायर को बिलोंग करता है। I hope you get it. Shamir, if you have any further question, you can ask me. It's okay? Okay. Particular cases हैं, particular cases को हम discuss नहीं करते. We discuss general cases. जैसे k is some any real number and x is any vector. तो जो condition है set पे हमने वो देखनी है, ठीक है? So further questions, if there are any other questions, you are most welcome to ask. यहाँ पे ये हमने स्ट्रेट लाइंस की बात की जो कि आर स्क्वायर कार्टेशियन प्लेन में से ओरिजिन में से पास करती हैं, वो सारी की सारी सबस्पेसेस होंगे। अब कितनी स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन में से पास करती हैं आर स्क्वायर में? आई होप यू कैन इमेजिन दे आर इनफिनिट मैनी। तो आर स्क्वायर की इनफिनिट मैनी सबस्पेसेस हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम आर क्यूब की बात करें तो आर क्यूब में ऑन द सेम लॉजिक यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। I give you brief explanation of this. अगर आपके पास r क्यूब है, मीन स्पेस है, r3 है, ठीक है, इसमें x है, ये y है और z है, ठीक है। तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि 3 डायमेंशनल है, तो आपके पास प्लेन भी हो सकते हैं और स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। 2 डायमेंशनल प्लेन भी हो सकते हैं। तो सारे के सारे 2 डायमेंशनल प्लेन जो कि ओरिजिन में से पास करेंगे, ठीक है, ओरिजिन में से पास करेंगे, वो क्या होंगे? सब स्पेसेस बनाएंगे आर क्यूब की, ठीक है। और सारी की सारी स्ट्रेट लाइन जो 3 डायमेंशनल में हैं, स्ट्रेट लाइंस वो कितनी होंगी? इनफिनिट मैनी। प्लेन्स कितने होंगे? इनफिनिट मैनी। हमने सिर्फ ये इस बात का ख्याल रखना है कि लाइंस और प्लेन्स जो हैं ओरिजिन में से पास करें। ओरिजिन में से क्यों पास करें? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए सबसेट में। अगर 0 में से पास नहीं करते तो एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होगी, इसमें 0 0 0 नहीं होगा, तो फिर आइडेंटिटी अगर मिसिंग है तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा और सब स्पेस भी नहीं होगा, ठीक है। आई होप यू गेट इट। ये सेट जो है ना ऑन द सेम लाइंस जैसे कि आर स्क्वायर को हमने डिस्कस किया था, इसी तरह आर क्यूब में भी लाइंस और प्लेन्स जो थ्रू ओरिजिन है वो सब स्पेसेस होंगे आर क्यूब की, ठीक है। अब read this slide, you would understand more. Yeah, let's do some example other than matrices and Rn, R2, R3. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि सेट ऑफ पोलिनोमियल्स जो है ऑफ डिग्री 2 और लेस, सेट ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2 जो है ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है। अब सेट ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 जो है वो सबसेट होगा सेट ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2। ये सबसेट होगा अनदर सेट जिसमें पोलिनोमियल्स की डिग्री थोड़ी सी आप हाई कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, तो ये सेट जो होगा सेट ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2, ये सबसेट होगा सेट ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 3 और एनीथिंग। तो अगर वो वेक्टर स्पेस है तो ये उसका सबसेट है, तो ये सब स्पेस बनाएगा, ठीक है। अगर हमने इसको सब स्पेस प्रूफ करना है तो वही हम दो प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे कि अगर हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हैं सबसेट में तो उनका सम भी एक क्या है? पोलिनोमियल है, डिग्री लेस देन इक्वल टू 2 का, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक सेट डिफाइन करूं सबसेट इसका W, ठीक है, जिसमें ये कहता हूं कि मैं ये है, इसमें पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है such that P2 की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ P2 इज एग्जैक्टली 2, ठीक है, इज एग्जैक्टली 2। ये एक इसका सबसेट है P2 का। ये होगा या नहीं? देखें P2 जो ऊपर वाला सेट है ये वाला, इसमें ऑल पॉलिनोमियल्स हैं जिसकी डिग्री 2 या उससे लेस है। अब W मैंने डिफाइन किया डिग्री 2 के ही पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन एग्जैक्टली डिग्री 2 के पॉलिनोमियल्स हैं।
डिग्री 2 और लेस नहीं है, ठीक है, तो ये डेफिनेटली इसका सबसेट होगा, ठीक है। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये सब स्पेस भी बनाएगा या नहीं। तो सब स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, सब स्पेस के लिए हम दो पॉलिनोमियल्स लेंगे और प्रूफ करेंगे कि उनका सम भी एग्जैक्टली डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि P2 एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसमें इसके एलिमेंट्स हैं x2 x स्क्वायर a2 x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ये लिख नहीं रहा सही, लेट मी राइट इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे इसको यहाँ पे एरेज करता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड यूज करता हूँ। हाँ नहीं, ये नहीं, चलें यहीं पे कर लेते हैं। तो अच्छा, डिग्री 2 के पॉलिनोमियल्स लेना है हमने। P2 में ले रहा हूँ, P2 एक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, जिसमें यहाँ पे मैं a2 x स्क्वायर a1 x और a0 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक और पॉलिनोमियल ले रहा हूँ P2 बार, इसमें इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ माइनस a2 x स्क्वायर माइनस a1 x और माइनस a0। अब अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा? 0 डिग्री। मतलब दोनों ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो W में तो सिर्फ वो एलिमेंट्स हैं जिनकी एग्जैक्टली 2 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि W में से कोई से दो एलिमेंट्स लें, इट इज नॉट नेसेसरी कि उनका सम भी W को बिलोंग करे। तो यहाँ पे इस केस में P2 प्लस P2 बार इट डजंट बिलोंग्स टू W। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या होगा कि ये सबस्पेस नहीं होगी। I hope you get this. If you have any question, you can ask me. I give you a few seconds to think over it. अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिए। So if you don't have any question, let's move forward then. It's a theorem. The intersection U intersection W of two subspaces U and W of a vector space V is also a subspace of V. It's a very simple theorem. अगर हमारे पास दो सबस्पेसेस हैं V की, तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक सबस्पेस होगी V की। This is what we have to prove. तो कैसे प्रूफ करना है? It's very easy. Let me give you a brief proof of this theorem. देखें, U इंटरसेक्शन W को हमने सबस्पेस प्रूफ करना है V की। क्या करेंगे हम? दो एलिमेंट्स लेंगे, हम कहते हैं कि U और W, ठीक है, ये दो एलिमेंट्स हैं किसमें? U इंटरसेक्शन W में, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है हमने? U प्लस W जो है ये बिलोंग करता है U इंटरसेक्शन W, यही प्रूफ करना है ना, ठीक है। अब यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। देखें, टेक्निकली या लॉजिकली अगर U और W इस सेट को बिलोंग करते हैं तो ये दोनों जो हैं U और W ये U को भी बिलोंग करेंगे एंड U और W जो है ये W को भी बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन ही यही है कि इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है। तो U और W U में भी होंगे और W में भी होंगे। अगर U और W U में है, U तो क्या है? एक सबस्पेस है। W is already a subspace, we know it. अगर ये दोनों सबस्पेसेस हैं, U सबस्पेस है और दो एलिमेंट्स U में से ले रहे हैं, तो इन दोनों का सम किसको बिलोंग करेगा?
इन दोनों का सम बिलोंग करेगा U को, क्यों? क्योंकि U सब स्पेस है, एंड U और W का सम W को भी बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों W को बिलोंग करते हैं, और W क्या है? एक सब स्पेस है ऑलरेडी, तो U प्लस W W को बिलोंग करेगा। अब हम अगर देखें यहाँ पे तो ग्रीन से, ये एक एलिमेंट है जो U को भी बिलोंग करता है और ये W को भी बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली U प्लस W जो है वो बिलोंग करेगा U इंटरसेक्शन W को, बिलोंग करेगा ना डेफिनेटली, क्योंकि ये दोनों को बिलोंग करता है, तो इंटरसेक्शन में डेफिनेटली होगा। तो हमने प्रूव क्या करना था? यही प्रूव करना था कि ये एलिमेंट U इंटरसेक्शन W को बिलोंग करता है। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रूव होगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, ठीक है, वो भी इसी तरह की होगी। हम एक एलिमेंट लेंगे U इंटरसेक्शन W में से और एक स्केलर लेंगे K। अब जो एक एलिमेंट U है जो U इंटरसेक्शन W को बिलोंग करता है, वो U को भी बिलोंग करेगा, W को बिलोंग करेगा। अब W और U जो है सब स्पेसेस हैं, तो K टाइम्स U को बिलोंग करेगा, K टाइम्स U W को भी बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि दोनों सब स्पेसेस हैं और उसमें दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। तो अगर U को भी बिलोंग करता है, U W को भी बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली दोनों के इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी इसी तरह हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, गो अहेड, यू कैन आस्क मी। थ्योरम का प्रूफ इजी है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम। If you don't have any question, let's move forward then. This one, subspaces of Rn. अब जनरली हम देखते हैं लीनियर सिस्टम्स को हम एसोसिएट करते हैं सब स्पेसेस से और वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। तो क्योंकि इट्स अ कोर्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, और इसमें लीनियर सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं हम, तो लीनियर सिस्टम्स के बाद हमने वेक्टर स्पेसेस शुरू की। तो वेक्टर स्पेसेस बेसिकली ये भी आगे चल के हम कनेक्ट करेंगे कि जो लीनियर सिस्टम के सॉल्यूशंस हैं वो वेक्टर स्पेसेस बनाते हैं, और जो होमोजीनियस लीनियर सिस्टम्स हैं वो भी वेक्टर स्पेसेस बनाते हैं। हम इन चीज़ों को आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये वेक्टर स्पेस की जो एप्लीकेशंस हैं वो लीनियर सिस्टम सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर सिस्टम में भी हैं, उनको डिस्कस करने में आगे फर्दर हमें ये वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस, ये चीज़ें जो है ये हमें ज़रूरत होती हैं आगे जाके, तो ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस, आगे चल के हम स्पैनिंग सेट्स को डिस्कस करेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस को डिस्कस करेंगे। ये सारी की सारी चीजें बेसिकली इन ऑर्डर टू एनालाइज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम्स, इनको एनालाइज करने में, इनको अंडरस्टैंड करने में ये चीजें हमें हेल्प करती हैं। So that's why we are discussing vector spaces, subspaces, and then linear independence and many other things, spanning and bases and dimensions. ये सारी की सारी चीजें आगे चल के कनेक्ट होंगी बैक टू लीनियर सिस्टम्स, ठीक है। तो ये आगे चल के हम मजीद डिस्कस करेंगे। अब आर एन की एक ऐसी सब स्पेस भी है। नाउ वी आर गोइंग टू रिलेट वेक्टर स्पेसेस विद द लीनियर सिस्टम्स, ठीक है। Subspaces of Rn. Let's consider the homogeneous linear system. Homogeneous linear system is what? Here it is Ax equal to 0. We know that we can write the homogeneous linear system in this form, Ax equal to 0, where A is some m cross n matrix और x जो है वो आपके पास unknown vector है। तो हम कहते हैं कि let H be the set of all solutions of this system. Yes. अगर homogeneous linear system है तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज होंगी। ये हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं, या तो इनका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या इनफिनिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में हमेशा होमोजीनियस लीनियर सिस्टम के इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इट इज मैंडेटरी, इट इज मस्ट।
तो इसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे? इन्फिनिट मैनी। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री वेरिएबल्स आएंगे। फ्री वेरिएबल्स जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपके पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस आ जाते हैं। तो ये पूरे जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, अगर उसको हम एक सेट की फॉर्म में लिख दें और सेट को हम H कहें, तो वो H जो होगा सेट, वो सब स्पेस होगा Rn का। ठीक है, Rn का की सब स्पेस क्यों होगी? क्योंकि ये जो अननोन वेक्टर्स हैं, दे आर बेसिकली दे बिलोंग्स टू ओरिजिनली Rn। क्यों? क्योंकि इसमें n कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सारे के सारे सॉल्यूशंस जो होंगे, सॉल्यूशन सेट जो होगा ये इसका, वो Rn का सबसेट होगा। H मस्ट बी सबसेट ऑफ Rn। अब Rn तो हमने देखा है पहले कि ये एक वेक्टर स्पेस है। अब हमने ये देखना है कि H जो है इसकी सब स्पेस होगी या नहीं। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है। आप तो कैसे प्रूफ करेंगे? हम अस्यूम करेंगे H में क्या है? सॉल्यूशंस हैं होमोजेनियस लीनियर सिस्टम के। you keep this in your mind। अगर H में सॉल्यूशंस हैं तो हम कहते हैं कि कोई से दो एलिमेंट्स हैं, फॉर ऑल मे बी x y belongs to h। ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं h में, ये दोनों क्या होंगे? सॉल्यूशंस होंगे होमोजेनियस लीनियर सिस्टम के। और हमने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव हमने प्रूव ये करना है कि x प्लस y जो है ये भी h को बिलोंग करता है। x प्लस वाई बिलोंग्स टू h, ये हमने प्रूव करना है। अच्छा, x प्लस वाई h को कब बिलोंग करेगा? h में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं? h में सॉल्यूशंस हैं होमोजेनियस लीनियर सिस्टम के। अब x प्लस वाई अगर होमोजेनियस लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन हो जाता है तो फिर x प्लस वाई h को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि h में सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ये जो गिवन है इसके सॉल्यूशंस हैं। अब हमने ये प्रूव करना है कि x प्लस वाई इसका सॉल्यूशन है। तो इट्स वेरी इजी। हम क्या करेंगे? हम कंसीडर करते हैं कि x a टाइम्स x प्लस वाई, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि x प्लस वाई जो है वो सॉल्यूशन है इस लीनियर सिस्टम का, क्योंकि ax इक्वल टू 0 है। तो a इंटू एक्स प्लस वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू एक्स प्लस a इंटू वाई। अब इंडिविजुअली x एज को बिलोंग करता है, हमने पहले कहा था, और y भी एज को बिलोंग करता है। अगर x एज को बिलोंग करता है तो x क्या होगा? सॉल्यूशन होगा इस लीनियर होमोजेनियस सिस्टम का। ठीक है, इसका मतलब है ए एक्स क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, और ए वाई भी 0 होगा ऑन द सिमिलर लाइन। अब यहाँ पे अगर ए एक्स भी 0 है, ठीक है, ए वाई भी 0 है, तो ये किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। इसका मतलब है ए टाइम्स एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट एक्स प्लस वाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस होमोजेनियस लीनियर सिस्टम। अगर ये सॉल्यूशन है तो किसको बिलोंग करेगा? एज को बिलोंग करेगा। एज को बिलोंग कर गया तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होगी। ठीक है, सिमिलरली यू कैन प्रूव द सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या होगा? अगर x जो है बिलोंग करता है एज को और k एक स्केलर है जो कि r को बिलोंग करता है, तो हमने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव k टाइम्स x बिलोंग्स टू h। तो कैसे प्रूफ करेंगे? हमने प्रूफ कर देना है कि k टाइम्स x जो है वो सॉल्यूशन है होमोजेनियस लीनियर सिस्टम का। तो ये कब प्रूफ होगा? अगर हम प्रूफ कर दें कि a टाइम्स k टाइम्स x जो है वो 0 के इक्वल है। तो 0 के इक्वल ऑब्वियसली होगा, k एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाएं। ठीक है, a और x लिख दें। ठीक है, ax ऑलरेडी 0 है। क्यों? क्योंकि x एज को बिलोंग करता है, तो ये क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल। इट मीन्स दिस इंप्लाइज k टाइम्स x बिलोंग्स टू h। तो आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी भी इसकी प्रूव हो जाती है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। एनी क्वेश्चन?
If you don't have any question, then I must have to move forward on the next example. Linear combinations. लीनियर कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं हम, ठीक है. सब स्पेसेस में यहाँ तक till here. If you have any question, you can ask me. I give you a few seconds to look at this example or this theorem, and then you can ask me the question.